In German language, Abu means built up, increasing. So this principle, Abu principle, is the how the electrons are arranged in atom in increasing order of energy level. That is given there. So we know that the shells are around the nucleus, first shell, second shell, third shell, fourth shell, fifth shell, whatever it may be. So according to the quantum numbers, we know the first shell contain only s orbital, second shell contain s and p orbital, third shell contain s, p and d orbital, whereas fourth shell contain s, p, d and f orbital, and after that everywhere there is the sp-df orbital. This is 6. Everywhere same thing is there. But if you see this is yes, it will confuse. ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये सब सेम सेम रहेंगे तो इसलिए क्या किया, जो फर्स्ट है इसको लिखा है 1s, ये 2 है तो 2s 2p, ये 3s है तो 3s 3p 3d, 4s है तो 4s 4p 4d 4f, 5 है तो 5s 5p 5d 5, 6 ऐसे. नाउ इट्स क्लियर. अभी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कितने ऑर्बिटल से और किसका कौन सा ऑर्बिटल है. अब इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए ऐसा गोल गोल करते हैं, है ना. इससे क्या होगा, ये अच्छा दिखेगा अपने को, समझ में आने के लिए अच्छा रहेगा, है ना. ऐसा करते हैं. तो एक्चुअली अच्छा करना ये वाला मैटर नहीं है. द पॉइंट इज दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक तिरछी लाइन ऐसे खींचना है अपने, वैसे तिरछी, जस्ट यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन, ऐसा तिरछा ऐसे. यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. वो पजल नहीं होती क्या, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहा है कोई ऐसा, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोज अप टू दिस, एंड व्हेन यू कम हियर अगेन गो अपवर्ड एंड स्टार्ट हियर फ्रॉम हियर. यहां आने के बाद फिर से तो यहां से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, फिर यहां आने के बाद फिर से यहां से स्टार्ट करेगा, इधर ऐसे 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 स्टार्ट. सो व्हाट यू विल फाइंड, सबसे पहले आया 1s क्रॉस किया, फिर ऐसा गई ऊपर गया, फिर 2s आया, फिर 2s से 2s के बाद 2p, फिर 3s आया, फिर 3p, फिर 4s. So the increasing order of the energy level in this direction is, पहले सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद आएगा 2s, उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s, फिर 3p, फिर 4s. 4s के बाद देखो 3d आ रहा है, 4s के बाद 3d आ रहा है, दिस इज 3d आफ्टर 4s. 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद में आ रहा है 4d. देखो 5s के बाद आ रहा है 4d, 4d के बाद आएगा 5p, देन 5p, देन 6s, like that. This is the increasing order of the energy level of orbitals, and we know these orbitals having how much maximum electrons is there in which orbital. पता है अपने को, अच्छे से पता है. यस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन. ये हमारे को पता. सो देन टुडे the electronic configuration. Electronic configuration according to Abu principle. This is the increasing order of energy level according to Abu principle. So as we know the atomic number, means by knowing the atomic number we can able to write the electronic configuration. For example, if we take hydrogen, atomic number 1, means we can write
the entry of electron in this direction. So for this we should write 1s1. 1s1 means this one electron is there in the 1s orbital. If you take another example, this is a lithium, atomic number 3. So the electronic configuration will be 1s2 means maximum 2 electrons is there in s orbital, and 2s1. If you take another example, that carbon, if you take nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, neon we take, and sodium. So this is 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So the electronic configuration of this according to the increasing order of energy level it will write. So carbon, this is 1s2, 2s2 and 2p2. 6 electron, 2, 2, 2, 6 electron. So this is 1s2, 2s2 and 2p3. Here 1s2, 2s2 and 2p4. Because this p orbital have maximum occupying capacity is 6. Here 1s2, 2s2 and 2p5. Here 1s2, 2s2 and 2p6. So now this p orbital is also completely filled. Means after this the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. 3s1. So this is the electronic configuration. And as per previous पुराने हिसाब से अगर देखेंगे, थोड़ा सा देखो, पहला शेल ये है पहला शेल. अब ये देखो, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, पहला शेल, दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा. इसमें देखो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले में 2 और दूसरे में 1. यहाँ पे देखो पहले में 2 और दूसरे में 4. यहाँ पहले में 2 और दूसरे में 5. यहाँ पहले में 2 और दूसरे में 6. पहले में 2 दूसरे में 7. यहाँ पहले में 2 दूसरे में 8. यहाँ पहले में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 1. सेम है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा. थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ा डीप में पड़ा है. सो दिस इज फर्स्ट शेल, दिस सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल. So according to the increasing order of energy level, these electrons are filled in orbitals. Now, if you know the electronic configuration, now just see this. ये देखते हो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. In carbon, nitrogen, oxygen, the outermost electron, this outermost electron is in 2p orbital. In case of carbon, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, कार्बन outermost orbital is 2p2. We know that p orbital having 3 suborbital. Every suborbital contains 2 electrons. So the actual electronic configuration we can write like this. So 3 suborbital. This is 2px, 2py and 2pz. So these 2 electrons are where these 2 electrons occur. 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएंगे? क्या ऐसे होगा 1 और 2? नहीं, गलत. इसे जलाओ. क्या होता है इसमें? इसमें होगा ये this is 2px, 2py and 2pz. So first electron come in 2px, second electron come in 2py. If there is third electron, अगर तीसरा होता तो यहाँ आता, चौथा फिर यहाँ आएंगे. Means all suborbital get singly occupied first, then pairing start.
सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, तब ये राइट होगा. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस. सो इन केस ऑफ दिस नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, सो आउटरमोस्ट 2p3. 2p3 मीन्स तीन एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे. यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ. अगर इसका लेते एग्जांपल अपन ऑक्सीजन का, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन 2p4, so this 2p4 means 4 means remember 1 2 3 और बाद में 4 पेयरिंग स्टार्ट. एंड दिस इज द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. दिस इज नोन एज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. All suborbital get singly occupied first, then pairing start. This is the Hund's rule of maximum multiplicity. Then there is one principle that is known as Paul's exclusion principle. Paul's ने क्या देखा, उनका क्या कहना है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, उनका क्या कहना है कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं. If you take any 2 electrons in any atom, all 4 quantum numbers are not same. उस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसा यहां से मैं एक समझा के दिखाता हूं पहले. जैसा मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नाइट्रोजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है. 1s ऑर्बिटल में यस है तो ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बराबर है. उसके बाद यस ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बराबर है. लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग अलग होगी. यानी इसका अगर यस ऑर्बिटल को ऐसे देखेंगे तो इसका जो स्पिन होगा, एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा. स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गए. 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गए. अब 2 लेते, दूसरा कोई भी दूसरा एग्जांपल, इसी में दूसरा ले लो या फिर कोई ये लेते, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन लेते समझने के लिए. अगर यहाँ का 1s का 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 2s का 1 इलेक्ट्रॉन, समझो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s और 2s, पहली शेल दूसरी शेल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग होगा ना. मान लो इसका क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ले भी लिया समझने के लिए, तो A1s और A2s है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही अलग अलग होंगे ना. अब कोई भी एग्जांपल लेंगे तो भी पॉल्स ने जो अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है जिसको बोलते हैं पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उनका ये कहना है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एटम में ले लो, वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी, अजीमुथल क्वांटम नंबर भी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी, स्पिन क्वांटम नंबर भी. अगर वो 3 बराबर होंगे तो स्पिन तो अलग होगा. स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन अगर सेम होगा तो हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग होगा. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. और इस चैप्टर में आपको जितने मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं वो लिखना है. और इसके बाद वाला जो चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा है, पेज नंबर 86 में पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल को भी ध्यान रखना. ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन होती है, ये ध्यान रखना. और फिर से मैं याद दिलाता हूँ, जैसा ऑक्सीजन सेकंड रो में पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के चौथे लाइन में देख लेना. फ्लोरीन सेकंड रो में, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के 5वें लाइन में. जैसे ये सोडियम, सोडियम थर्ड रो में, यस ब्लॉक में, यस ब्लॉक के पहले लाइन में. तो ये सबका है, तो आप लोगों को सबके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और इस चैप्टर को समझना. बहुत ही इजी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत काम का है. ओके, थैंक यू.